what is folktale? Folktale is a story that has been passed on from one generation to another. So this folktale means the story that is passed down by one generation to other generation orally, okay, through the word of mouth. Here also there is a story, okay, one man and a woman, means a couple is there, and a woman cannot give birth to child, okay, woman cannot become pregnant, but one fine day she becomes pregnant. And they are very happy, and the man, okay, means the husband of woman is very happy, and on this happy occasion he tells many things about future. He says that you will give birth to son, okay, he tells his wife that you will give birth to son, and our son will be very robust and intelligent, very strong and healthy, and our son, I will teach him everything, I will educate him, and we will do his upbringing, and he will increase the prestige of our family, okay, he will increase my name, and he will increase my name, he will do good in his career, okay, everything he says. But the wife tells him that he should not speak such idle words, means he should not speak high about future, because future is still unknown and uncertain, right? He further tells a story to his husband. तो वो एक स्टोरी भी बताती है अपने हस्बैंड को, और उस स्टोरी में भी यही मॉरल निकलता है कि लोग को we should not boast, okay, we should not speak such idle words about our future, because future is unknown and uncertain. We should always think that God will plan best for us. Whatever God will do will be the best for us. So we should not speak high, we should not brag, okay, particularly if I say we should not brag about future. So let's read this chapter. Chapter 4, A Wise Lesson. Folktales are stories which are passed down from generation to generation, from one generation to another by word of mouth. Means folktales are stories which are passed down by people from one generation to another orally. Okay, orally it is said, like your great grandmother told story to your grandmother told the story to your mother told the story to you, okay, to children, and children means you will also tell the stories to your children, okay. So it is passed from one generation to another orally. Some examples of Indian folk tales are The Monkey and the Crocodile, The Foolish Lion and the Clever Rabbit. You might have heard this story of Foolish Lion and Clever Rabbit, okay. Here in this folk tale is given, which we will read. Through these folk tales, the ethics of culture, means the principles, the moral values of the culture is taught to young and old. ठीक है, ऐसे folk tales के माध्यम से, ऐसे folk tales के द्वारा moral values है, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स है, मॉरल प्रिंसिपल्स, वो सिखाए जाते हैं सभी को, हर एक छोटे बड़े लोगों को ये मॉरल प्रिंसिपल्स, मॉरल वैल्यूज सिखाई जाती है. और यहाँ पर एक स्टोरी के अंदर जो स्टोरी है वो फोक टेल है, एंड वो जैविश फोक टेल है. ओके, जैविश मीन्स ऑफ पीपल ऑफ
Jews. Okay, it is a Jewish folk tale of Jews, and Jews are people following Judaism. Judaism is a religion, so people following Judaism are called Jews. Okay, and majority of Jews following religion are in Israel, US and Oman. Okay, now we will read this story. In a town on remote island lived a God-fearing man. ओके, तो एक छोटा सा टाउन है. ओके, और वो टाउन कहाँ पर है? एक रिमोट आइलैंड में. रिमोट आइलैंड हियर मीन्स अ आइलैंड मीन्स अ लैंड कवरिंग वाटर ऑन ऑल साइड्स. ओके, तो एक ऐसा आइलैंड है और वो रिमोट आइलैंड है, यानी वहाँ पर कम लोग रहते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी कम है. सो on remote island lived a God-fearing man. God-fearing man means, here it means very religious and very ethical man. ठीक है, वो बहुत ही रिलीजियस था और वो बहुत ही मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करता था. सो इन अ रिमोट टाउन ऑफ आइलैंड there lived a God-fearing man whose wife could not have children. Okay, जिसकी वाइफ को बच्चे नहीं थे या नहीं हो रहे थे. Okay, whose wife could not have children. One day, however, she became pregnant. पर एक दिन पर वो प्रेग्नेंट होते हैं. ओके, उसको वो कंसीव करते हैं. ओके, सो शी एक्सपेक्ट्स अ चाइल्ड बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट. वन डे हाउएवर शी बिकेम प्रेग्नेंट एंड हर हस्बैंड रिजॉइसिंग इन हिज हार्ट. रिजॉइसिंग यानी बहुत खुश होना. ओके, सो ऑन हियरिंग दिस न्यूज़ ही वॉज वेरी हैप्पी इन हिज हार्ट. वो बहुत ही खुश थे, मनोमन उन्हें बहुत खुशी हो रही थी. ओके, दिल से वो बहुत खुश थे. सो ही वॉज वेरी हैप्पी. ओके, एंड ही वॉज हैप्पी हियरिंग दिस ग्रेट गुड न्यूज़. ओके, हैप्पी एट द glad tidings. Glad tidings means good news. Okay, he said, you will give birth to a son who will be the comfort of our souls and delight of our hearts. So in this happy mood, okay, he tells his wife that you will give birth to a son who will be the comfort of our soul. Okay, that baby, that boy baby will comfort our souls and delight our hearts. means उसको देखकर हमें बहुत खुशी होगी, हमेशा वो हमें खुशी देता रहेगा. ठीक है. I will educate him and bring him up well. मैं उसकी अच्छे से देखभाल करूँगा, उसे अच्छे से पढ़ाऊँगा, उसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से करूँगा. ठीक है. एंड ही शैल इनहेरिट माई गुड नेम एंड इंक्रीज माई रिनॉन. ठीक है, तो वो बच्चा जो होगा, जो हमारा बेटा होगा, उसे मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा, उसे मैं बहुत अच्छी परवरिश दूँगा. ठीक है, और वो बड़ा होगा और वो भी मेरे फेम को, मेरे प्रेस्टीज को बढ़ाएगा. ओके, ही शैल इनहेरिट मतलब उसको भी मेरी तरह अच्छा नाम, मेरा नाम उसको मिलेगा, वो भी मेरी तरह अच्छा पर्सन होगा, वो भी अच्छे से सब काम संभालेगा. ओके, और वो भी बहुत ही फेमस होगा. ही विल ऑल्सो बिकम फेमस, पॉपुलर एंड ही विल ऑल्सो प्रोग्रेस. ओके,
Next paragraph. Thus spoke the happy potential father. So he speaks to his wife, he tells his wife, as you can see in this image given in your textbook, that he is holding the hands of his wife and he is very happy and he is telling all these things to his wife. Happy potential father. Potential means who is capable and who will become, okay, who will become father. So he is going to become father in future when his wife will give birth. Okay, so these lines he speaks, but his wife replied. Okay, after hearing everything, his wife replied, "You speak foolish." आप बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो. You speak foolish. You speak foolish words, for the future is unknown to you. How do you know that my child birth is going to go well? How do you know that my child birth is going to go well, that I shall give birth to a son and not to a daughter, that the child is going to live long and that it is going to be robust and healthy. ठीक है, तो वाइफ बोलती है कि आप बहुत बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो, आपको फ्यूचर के बारे में नहीं पता है. ठीक है, किसी को अपने फ्यूचर, अपने भाग्य के बारे में नहीं पता है, तो फ्यूचर की इतनी एक्साजरेटेड बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए. So you should not speak foolish words, for the future is unknown to you. How do you know? आपको कैसे पता कि मेरा चाइल्ड बर्थ है, ओके, जो मेरी डिलीवरी है वो अच्छे से हो जाएगी, मेरे को सन होगा, डॉटर मेरे को नहीं होगी, वो आपको कैसे पता कि मुझे बेटा ही होगा. ठीक है, और आपको ये कैसे पता कि मेरा बेटा है वो लंबा जिएगा, ओके, उसकी लाइफ लंबी लाइफ होगी उसकी, ओके, और वो बहुत ही सुंदर होगा, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, वो आपको कैसे पता है. हाउ डू यू नो दैट ही विल बी robust and healthy? Means strong and healthy. You should not have spoken such idle words. Okay, आपको ऐसे words नहीं बोलने चाहिए. Idle words means the words which are exaggerated. Okay, you should not speak in the self pride. Okay, and not boast. What is the meaning of boast? Boasting means that when you speak unnecessarily excessive, exaggerated statement, when you are very happy and you are very proud, okay, you brag, so that is called boasting. ठीक है, आपको बहुत ही प्राइड फील हो रहा है, आपको प्राउड फील हो रहा है, तो उसी प्राइड में आप जो वर्ड्स बोलते हो, ठीक है, दैट आर वेरी एक्सेसिव, दे आर बियॉन्ड द लिमिट and you exaggerate beyond the limit. So you should not speak such idle words and boasted, but left everything to God. ठीक है, आपको ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, सब भगवान के ऊपर आपको छोड़ना चाहिए. भगवान की जैसी मर्जी होगी वही अच्छा होगा. ओके, सो यू शुड लेफ्ट एवरीथिंग टू गॉड हु कंट्रोल्स आवर डेस्टिनीज. ओके, जो हमारे भाग्य विधाता है, जिन्होंने हमारा भाग्य लिखा है. डेस्टिनी मीन्स हमारा भाग्य. ओके, डेस्टिनी मीन्स आवर फेट, आवर फॉर्चून. ओके, सो वी शुड ट्रस्ट आवर लॉर्ड and it may befall you as it once befell a certain dervish. Okay, so speaking such idle words and boasting may befall you as it once befell a certain dervish. So
here in this line she refers to a folk tale. Okay, she refers to a story in which dervish is also having certain dreams, and dervish is also thinking high. Okay, he is also boasting, so he befalls means something bad happens to him. Okay, bad thing happens. So we should not speak such words because future is unknown and uncertain. When her husband asked her what had happened to that dervish, ठीक है, वो dervish के साथ क्या हुआ था, मतलब पूरी स्टोरी जो है वो कैसे हुआ था सब कुछ. सो शी टोल्ड टू हिम द फॉलोइंग टेल. फिर उसने पूरी स्टोरी है वो नरेट की. वाइफ नरेटेड द स्टोरी. सो स्टोरी के अंदर भी स्टोरी है. वाइफ ने जो स्टोरी नरेट की है वो कुछ इस तरीके से है. देयर वॉज वंस अ डैरविश इन द सर्विस ऑफ अ किंग. किंग की सर्विस में एक डैरविश था. ठीक है, किंग के लिए वो किंग को कुछ सर्विस देता था. द किंग यूज टू गिव हिम अ पीस ऑफ केक एंड अ बाउल ऑफ हनी डेली. ठीक है, तो उसकी सर्विसेज के सामने उसको रोज़ एक केक का पीस और हनी का बोल मिलता था. ही यूज टू रिसीव अ पीस ऑफ केक एंड अ बोल ऑफ हनी डेली. द dervish यूज टू ईट द केक. केक तो वो खा लेता था. ही यूज टू ईट द केक एंड पुट द हनी इनटू अ जार. ओके, पर हनी है वो इस जार में डाल देता था. ओके, इस जार में वो हनी कलेक्ट करता था, रोज डाल देता था. ही ऑलवेज कैरिड अपॉन हिज हेड. He used to put honey in this jar, and this jar he used to carry it upon his head. Okay. Honey. However, in those days, honey was very expensive. Okay, honey was very expensive. It was very costly. One day, Dervish noticing that the jar was nearly full. एक बार jar है वो ऑलमोस्ट भर चुका था. ओके, इट वॉज स्टिल दिस मच. सो ऑलमोस्ट नोटिसिंग दैट हिज जार वॉज नियरली फुल, थॉट ऑफ अ हाई प्राइस ऑफ मनी ही कुड फेच. ओके, ही थॉट ऑफ द हाई प्राइस हिज हनी वुड फेच हिम. ओके, उसने सोचा कि अब पूरा जार भर चुका है तो अगर मैं इसको सेल करूँगा मार्केट में तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे. ओके, सो ही थॉट ऑफ द हाई प्राइस हिज हनी वुड फैच इन द मार्केट. आई एम गोइंग टू सेल माई हनी फॉर अ पीस ऑफ गोल्ड. ओके, मैं हनी सेल करके मैं सेल करूँगा और एक्सचेंज में मुझे एक गोल्ड पीस मिलेगा. ओके, मतलब मुझे एक पीस ऑफ गोल्ड मिलेगा. And then I will buy 10 sheep, all of which is going to give birth to lambs. तो जो मनी मुझे गोल्ड के पीस को सेल करने में मिलेगा उससे मैं 10 ships परचेज करूँगा. I will buy 10 sheep, all of which is going to give birth to lambs. Further, he is still thinking in his mind so that इन द कोर्स ऑफ 1 year, ठीक है, 1 साल अगर मैं इन शीप्स को मेंटेन करूँगा. ओके, आई एम गोइंग टू हैव 20 sheep. तो मेरी शीप है वो 20 हो जाएगी. इट विल मल्टीप्लाई एंड ओके देन फॉर श्योर दैट नंबर विल स्टीडीली इंक्रीज. ओके, दैट नंबर विल स्टीडीली इंक्रीज. उसका नंबर है वो बढ़ता ही जाएगा, कांस्टेंट बढ़ता जाएगा. एंड इन 4 years आई शैल देन बी द ओनर ऑफ 400 sheep. ओके, सो राउंड अबाउट 4 years में मेरे पास 400 sheep होगी.
तो वो क्या सोचता है कि उसके 4 इयर्स में वो शीप है वो 400 शीप हो जाएंगी, और फिर वो ऑक्स और काउ परचेस करेगा, एंड देन आई शेल बाय अ काउ एंड ऑक्स एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड, और मैं ज़मीन भी खरीदूंगा। ओके, ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदूंगा, मतलब एक प्लॉट, एक लैंड खरीदूंगा। माई काउ विल गिव बर्थ टू काल्व्स। ओके, मेरी काउ है वो भी काल्व्स को बर्थ देगी। ऑक्स और काउ खरीदूंगा तो काउ बर्थ देगी। माई काउ विल give birth to calves and ox will useful to me in plowing. ओके, और ox यानी कि हम जो बोलते हैं ox है वो फील्ड में, फार्मिंग में, प्लाविंग में मेरी हेल्प करेगा। ओके, फील्ड में प्लाविंग करना होता है तो प्लाविंग में वो मेरी हेल्प करेगा। While the cows will provide me with milk, और cows है वो मुझे, उसमें से मुझे बहुत सारा मिल्क मिलेगा। इन 5 years, तो 5 ही साल में मेरे पास बहुत सारी गाय और वो सब हो जाएगी। आई विल हैव द नंबर ऑफ माई कैटल विल इंक्रीज कंसिडरेबली एंड आई शेल बी पोजेसर, और उसके बाद तो मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे। आई विल बिकम वेल्दी। ओके, आई विल बिकम रिच। आई शेल देन बिल्ड अ मैग्निफिशेंट हाउस, फिर मैं बहुत ही सुंदर भव्य घर बनाऊंगा, मैं बहुत बड़ा अच्छा सा घर बनाऊंगा। एंड देन आई विल एक्वायर स्लेव्स एंड मेड सर्वेंट्स, फिर मैं तो नौकर चाकर रखूंगा। ओके, सब काम के लिए सर्वेंट्स होंगे। एंड देन आई विल मैरी अ ब्यूटिफुल वुमन, बहुत ही सुंदर लड़की से, बहुत ही सुंदर वुमन से मैं शादी करूंगा। ओके, देन आई विल मैरी अ ब्यूटिफुल वुमन ऑफ नोबल डिसेंट। ओके, तो बहुत ही खूबसूरत लड़की जो एक नोबल, एक पावरफुल, एक रिच फैमिली को बिलोंग करती है, जिसका स्टेटस है, वैसी एक फैमिली की वुमन से मैं शादी करूंगा। शी विल बेयर मी अ सन। ओके, और वो एक बच्चे को, एक बेटे को जन्म देगी। हमारा बेटा होगा वो बहुत ही इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा हमारा बेटा होगा। ओके, ही विल बी हेल्दी, ही विल बी स्ट्रॉन्ग, ब्यूटीफुल एंड वेरी वेरी इंटेलिजेंट। देन अ लकी स्टार विल शाइन एट द मूवमेंट, और एक लकी स्टार है वो उसी टाइम पर स्काई में चमकने लगेगा। ओके, अ लकी स्टार विल शाइन एट द मूवमेंट ऑफ हिज बर्थ, उसके बर्थ पर एक तारा भी चमकेगा। एंड ही विल बी हैप्पी एंड ब्लेस्ड, और इसी तरीके से वो हमेशा खुश रहेगा और उसको ब्लेसिंग मिलेगी। एंड ब्रिंग ऑनर टू माई नेम आफ्टर माई डेथ, और वो मेरी प्रेस्टीज को बहुत आगे बढ़ाएगा। ओके, मेरा नाम होगा उसी से, वो मेरा नाम बनाएगा। ठीक है, तो ही विल बी वेरी फेमस, पॉपुलर एंड he will also continue to be rich. Should he however refuse to obey me, I will beat him with this stick. पर अगर उसने मेरी कोई बात नहीं मानी तो मैं तो उसको बहुत ज़्यादा स्टिक से मारूंगा। ठीक है, so he is doing a self talk, he is thinking in the mind. Okay, he is assuming and predicting number of things. Okay, and he is thinking that if his son will not obey, अगर उनका सन उनकी बात नहीं मानेगा तो वो इसी स्टिक से उसको मारेंगे, जो उनके हाथ में थी उसी स्टिक से उसको मारेंगे। ओके, ये आपको दिख रही है यहाँ पर स्टिक। ओके, so if he refuses to obey me, if he does not obey me, I will beat him with this stick, ऐसा वो सोचते हैं। और वहीं पर इतना डे ड्रीमिंग वो कर रहे हैं, इतना ख्याली पुला वो बना रहे हैं। एंड दस
The dervish was so caught up in daydreaming that he raised his stick. और वो बोलता है मैं ऐसे ही इसको इसी स्टिक से मारूंगा, और ऐसा करते वो अपनी डे ड्रीमिंग में स्टिक को भी ऊपर मूव करते हैं. ओके, स्टिक को भी मूव करते हैं. सो dervish was so caught up in the daydreaming he raised his stick which hit the jar. और वो स्टिक है वो उसके ही जार को लग जाती है. ओके, उसके जार को बहुत ज़ोर से लग जाती. एंड जार ब्रोक. ओके, एंड द स्टिक ब्रोक द जार. द जार ऑफ हनी अलॉन्ग विथ हिज डे ड्रीम्स वॉज लॉस्ट. ठीक है, हनी भी पूरी स्पिल हो जाती है, हनी भी वेस्ट हो जाती है, और उसके सारे डे ड्रीम्स है वो भी ख़त्म हो जाते हैं. ओके, सो हनी इज़ ऑल्सो लॉस्ट विथ हिज डे ड्रीमिंग. सो ये पूरी स्टोरी है वो वाइफ ने अपने हस्बैंड को बताई, उन्होंने नरेट की. ओके, आई हैव टोल्ड यू द स्टोरी, कंटिन्यूड द वाइफ ऑफ द पायस मैन. ओके, तो मैंने ये पूरी स्टोरी आपको बताई. सो ये वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है. हस्बैंड उसका कैसा है? ही इज़ अ पायस मैन, मीन्स इज़ अ वेरी रिलीजियस मैन. ओके, जस्ट टू गिव यू अ लेसन, ये स्टोरी मैंने बताई ताकि आप इस स्टोरी से कुछ सीख पा सको, इस स्टोरी से आप कुछ सीखो. ठीक है, तो जस्ट टू गिव यू अ लेसन दैट इट इज़ नॉट वाइज, ये अच्छी बात नहीं है, ये समझदारी की बात नहीं है कि अगर आप है वो अपने फ्यूचर को लेकर ऐसी बातें करो. ओके, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, इट इज़ नॉट वाइज टू स्पीक ऑफ थिंग्स दैट आर अनसर्टन. रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ किंग सोलोमन, ओके, ऑफ किंग सोलोमन, who said, do not boast yourself. Okay, do not boast yourself, for you do not know what will happen to you next. Okay, तो हम काफ़ी बार हम लोग भी ऐसा करते हैं कि हम सेल्फ प्राइड में आ जाते हैं, हम एकदम पावरफुल फील करते हैं और हम एक्सैजरेट करके हम बोलने लगते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ नॉट गुड. इट इज़ नॉट गुड थिंग टू बोस्ट. ओके, टू एक्सैजरेट, टू स्पीक आइडल वर्ड्स. आई होप यू ऑल्सो गॉट अ लेसन फ्रॉम दिस स्टोरी. ओके, आपको भी एक सीख मिली होगी इस स्टोरी से. यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स दिए हैं. ओके, ये वर्ड मीनिंग्स जब वर्ड्स है वो जब स्टोरी में आए थे तब मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था. एक बार फिर हम लोग सारे मीनिंग्स रीड करते हैं. मीनिंग्स है ग्लैड थिंग्स. ओके, ग्लैड टाइडिंग्स, एक्चुअली यहाँ पर टाइडिंग्स है, दैट इज़ गुड न्यूज़. फिर है पोटेंशियल फादर, यानी कि फ्यूचर फादर, टू बी फादर. उसके बाद है बोस्टेड, मीन्स टॉक्ड विथ टू मच प्राइड अबाउट वंस ओन एक्शन. क्या होगा मेरे साथ, मैं क्या करूँगा, वो सारी बातें बहुत ही प्राउडली बोलना. ठीक है. डेस्टिनी, ओके, टू व्हाट हैपन्स टू समबडी इन फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा, हमारा फॉर्चून क्या होगा, व्हाट विल बी आवर फेट. ओके, बिफॉल यानी टू हैपन टू समबडी, जो किसी के साथ खराब घटना हुई थी. डेरविश, अभी आप सोच रहे होंगे डेरविश कौन सी सर्विस देते थे, राइट. डेरविश यूज्ड टू डांस. सो अ मेंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप हु परफॉर्म्ड फास्ट डांस एज अ पार्ट ऑफ वर्शिप. ठीक है, वो ट्वेल करते थे. दे यूज्ड टू वेयर वाइट क्लोथ एंड दे यूज्ड टू ट्वेल एंड दे यूज्ड टू डांस. दैट डांस फॉर्म इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप. नाउ डिसेंडेंट यानी फैमिली ओरिजिन, यहाँ पर आया था. यहाँ पर नोबल डिसेंडेंट यानी ऐसी फैमिली जो बहुत ही पावरफुल है, जिसकी फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा है. ओके, फिर
रिनाउन यानी फेमस, ओके, फेम. फिर रॉबस्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. फिर पायस, वेरी रिलीजियस. ओके, ये सारे वर्ड्स हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. We read this chapter. This chapter was very interesting, right? In this chapter, the wife tells story, and in that story also there is a dervish. Dervish performs dance for king. So he is serving king. He gives service to king, and in exchange of that, king gives him honey, and he collects the honey. And one day he wants to sell that honey because honey is very expensive. Okay, and he is daydreaming. Okay, he is planning everything in his mind and he is thinking high of his future, right? So he is also boasting. But what is the result of that? He hits the stick on the jar of honey, and all the honey is wasted, and all the dreams are also wasted. So moral of this story is we should not boast about future. Okay, we should leave everything upon God. Okay children, we end this chapter. I hope you enjoyed it.